Recording, yes, my dear students. Reported. Morning, sir. Good morning, good morning. Sorry. So we have done this actually, reported speech for Yes, sir. questions. Okay. But we need to just recapitulate the things. एक बार फिर से देख लो. So वो दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि repetition is the only way to remember anything. Okay. So when it is yes no question, what we do? We use if or whether, okay, before the subject. Okay, and here the example is, are you going to compete the examination? So it will become principal inquired me whether I was going to complete the examination. इसका आंसर क्या आता है? दो ही में आता है, या तो yes या तो no, और एक आंसर है don't know. तो हालांकि वो कोई फॉर्मल आंसर नहीं है, ठीक है. सो इंक्वायरी एंड इंक्वायरी, ये भी कल बता दिया था मैं. इंक्वायरी फॉर फॉर्मल क्वेश्चन और इंक्वायरी फॉर कैजुअल क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद था डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए. डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं था, बस चेंजेस ये था कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले आ जाता है. सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. हियर यू कैन सी सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरचेंज हो जाता है. यहाँ पर है वाई आर यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, और यहाँ हो जाएगा वाई आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ. सो कीप इट इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट दिस. उसके बाद था डब्ल्यू एच क्वेश्चन बट विदाउट एनी एक्शन वर्ब, दैट मीन्स विथ बी वर्ब. एक्शन वर्ब नहीं है तो ऑफकोर्स उस सेंटेंस में बी वर्ब होगा, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता. ठीक है. वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड विदाउट वर्ब it is impossible to frame any sentence. So if the reported speech is WH question and it is with be verb, then what we have to do? The be verb can come before or after the object. Be verb can come before or after the object. ये rule है. Example, the teacher said, what is the vital part of your life? So the teacher wanted to know what was the vital part of my life. तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, व्हाट वाज लिख सकते हो, या फिर यू कैन डू लाइक दिस, द टीचर वांटेड टू नो व्हाट द वाइटल पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज. ठीक है. सो बोथ आर करेक्ट. यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. आई मीन which one you like most, you can choose it. So now rules for imperative. Okay, so be ready. I mean be ready doesn't mean that कि भाई सूट बूट पहन लो. I mean शूट नहीं पहनना. रेडी, बी रेडी फॉर टू राइट the rules for changing direct speech to indirect speech for imperative sentences. So basically imperative sentences are request. Okay, you can see a cute, I don't know what, I think it is koala. I think it is koala, yeah, sloth something. So cute. And you can see one man is bleeding something, and here you can see a man giving command. So imperative sentences are like request, command, order, suggestions. Clear? So these are called imperative sentences. Now what rule we have to apply for imperative sentences? Okay, so now do one thing, just turn on your video and let me show your copies where you are writing. Please turn on the camera. Okay. I can see Harit's one as usual. Prishika good. Bhumi very good. बाकी लोग कहाँ है भाई? तन्मय, काव्या, लब्धि, प्रियांश, भाविक,
यस, आर यू देयर माय डियर स्टूडेंट्स? ये भगवान, लोग क्लास में आने के बाद कहाँ चल देते हैं? खाना खाने चलेंगे क्या? लवधी, भाभी, खुशील, वेयर आर यू? तेजस्वत, टर्न ऑन योर कैमरा. Yes, sir. Okay, those who have shown, they can turn off. Krishika, Harit. Okay. Yes, Tejaswat, show me your head. Sorry, you are showing your head. Show me your copy. Yes, Raghav. थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है Sir, बेटा? sir, I didn't wrote anything because I came now. Means my network here light was gone, so I came now. Okay, so you have to write from here only. Just arrange your copy and pen. Okay. Yes, sir. I'm bringing. I'm bringing. And complete the previous one also. You can see the recorded live classes, or PPT is going to be uploaded. Okay. Okay, sir. So Divya, okay, you are writing. That's very good. Kavya, where is your copy? Okay. Okay, good. Kushil Surana, not visible. Ishika Sanchiti, yes, she is visible. The copy. Raise your copy. ओके, बाकी लोग कैमरा ऑन नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, कैमरा ऑन अभी मत करो, फिर मार्क्स में कुछ होगा तो मुझे मत बताना फिर. ओके, डोंट कम टू मी इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन मार्क. You don't want to follow the instruction of your teacher, that is up to you. But what we can do, that is up to us. Okay, and intentionally we don't want to do injustice with you. Okay, so rules for imperative sentences: request, command, order, suggestion. So sometimes we find the reported speech like it can be request, it can be command, it can be order, it can be suggestion. So now what are the rules? Let us see. Okay, so I hope all of you are ready with your copy and pen. So write down rules for imperative. And yes, so here you can see one beautiful image of clouds. So you can see the teacher said, please keep the noise down. ये अक्सर होता है क्लास में. तो इस ये हो गया डायरेक्ट नरेशन. नाउ इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड अस टू कीप द नॉइज डाउन. तो काफी चेंज हुआ. यू कैन सी देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन डायरेक्ट नरेशन, और यू कैन से डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सो देयर इज ड्रास्टिक चेंज, बट डोंट वरी, ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो यहां से शुरू होता है हमारा रूल्स. तो आंख बंद करके लिखना शुरू करो. अरे आंख बंद करोगे तो फिर लिखोगे कैसे? हाँ, तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, प्लीज सी द रिपोर्टिंग वर्ब and according to the emotion of reporting verb, said to is replaced with words like requested, advised, ordered, commanded, suggested, warned, etc. अब यहाँ पर जो है हमें कई तरह के रिपोर्टेड वर्ब देखने को मिल रहा है ना. वी कैन सी मल्टीपल रिपोर्टेड वर्ब, रिक्वेस्टेड, or you can say reporting verb, requested, advised, ordered, commanded, suggested, warned. So ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? द इमोशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. द इमोशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसा बोला जाएगा उसको देख के हमें यूज करना है. RS शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, so here you can see the example. She said to Monu, please give me a glass of water. तो she requested. भाई प्लीज बोल रहा है तो ऑफ कोर्स रिक्वेस्टेड ही होगा.
यहाँ ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई शी वांट मोनू। अगर तुम यहाँ रिक्वेस्टेड के जगह वांट यूज करते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय द इमोशन। सो द शी रिक्वेस्टेड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दो रूल को समझो। पहला तो ये हो गया कि सेट टू जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मतलब डायरेक्ट में सेट टू है तो इनडायरेक्ट में वो रिक्वेस्टेड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच। अब और क्या समझना है, यहां पर आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आफ्टर ओमिटिंग इन्वर्टेड कॉमा टू इज यूज्ड। क्लियर? ये भी रूल में आएगा, डोंट वरी, लेकिन अभी देख ही लो, समझ लो इस बात को। सो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या यूज किए, टू यूज किए, और उसके बाद टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आ गया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, टू के बाद हमेशा वी नो दैट कि आफ्टर टू प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। उसके बाद बाकी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस प्रोनाउन में तो चेंज होगा ही। मी का हो जाएगा हर, क्योंकि मी मतलब कौन है, शी। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके ओके, इफ यू हैव रिटन the rule and the example, then please inform me. I will move to the next slide. Okay, Krishika is saying done. क्या बात है, very good. राजधानी एक्सप्रेस, Not done, sir. okay, another one of you. बाकी लोग को क्या हो गया, on the process. Yes, I am waiting, my dear students. दो लोगों ने बताया कि हो गया है out of 21. Those who joined late, you need to write. You can write from here itself. Give heading, rules for changing speech direct to indirect, bracket में imperative sentence, because we are going through imperative sentence. Okay, Manvi is saying done. Bhumi, complete. Very good. So it is true that girls are sincere. More sincere than boys. Garvik completed. Okay, good. Seriously, girls are very sincere. They are disciplined. They are, क्या बोलना चाहिए, वेल मैनर्ड। ओके, मुदित, चलो दो लड़के तो आए, तीन लड़कों का हो गया, गार्विक, मुदित और हरित। राघव, ऋषभ, तन्मय, तेजस्वत, क्या हो गया भाई? डू इट फास्ट, देन वी विल। Yes, sir. I brought the copy. I am writing. Okay, carry on. And example is very important to understand. Okay, so while you are writing the example, you should also pay extra focus to find the changes, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है ना। जैसे प्लीज को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिख दिए हैं। तो व्हेन इट इज अ रिक्वेस्ट, it is of course understood that of course the speaker will say please. So she requested Monu to give her a glass of water. ठीक है? And see, when you are asked to change from direct to indirect, then you may not face any problem, but जब ये indirect से direct पे आएगा वहां प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ध्यान से इसको देखो कि अगर ऐसा सेंटेंस रहता है, शी रिक्वेस्टेड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, शी सेड मोनू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ताकि इंग्लिश में एक मार्क भी नहीं कटे। Harit, actually it is imperative sentence, and imperative sentence, uh, it has emotion. तो asked जब है भाई,
आस्क्ड में कोई इमोशन नहीं रहता है, लेकिन जब आप रिक्वेस्टेड बोलते हो, एडवाइज्ड बोलते हो, ऑर्डर बोलते हो, तो आप एक इमोशन रहता है उसमें, ठीक है। सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट में करोगे तो वहां पर प्लीज का यूज नहीं होगा ना। ओके हरित, शी आस्क्ड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको आप इनडायरेक्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, शी इन्वर्टेड कॉमा गिव हर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसमें प्लीज का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इमोशन नहीं दिख रहा है उसमें। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 2. Rule number 2 says, in imperative sentences, comma and inverted commas are removed and word to is used to join both the parts. Yes, I was talking about this in the previous slide. So now you can write the rule. You have heard from me the rule. Now you need to write the rule to get the rule. You need to write the rule to get the rule. अच्छा है ना, इंग्लिश में कितना अच्छा राइम बन जाता है। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड, which poetic device it is? मेरे क्वेश्चन आंसर है। यस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नींद से जग जाओ, बहुत सो लिए हो, एग्जाम आ रहा है अभी, पीरियोडिक टेस्ट 2। Well, so rule number 2, I hope it is very much clear to you. I don't think you have any problem. However, if you have problem, then you can ask. Yes, sorry, alliteration, that is a same letter repeated, same letter, but वो repetition of same word, that is called only repetition. वो poetic device का नाम ही है repetition, इसलिए बोला था क्वेश्चन में ही जवाब है। Okay, one more example, my dear students, and examples are very 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 important. Neelam said to her boss, please grant me leave for 3 days. Now in indirect what we will say, नीलम रिक्वेस्टेड हर बॉस, यहाँ पर रिक्वेस्टेड टू मत लिख देना, सेड टू को हटा के हम लोग क्या की, रिक्वेस्टेड। नीलम रिक्वेस्टेड हर बॉस टू ग्रांट हर लीव फॉर 3 days। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान दोगे तो बस यही किया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज को हटा के टू, बाकी प्रोनाउन में तो ऑफकोर्स चेंज होना ही है, बाकी सेम है, ठीक है। Okay, so rule number 2 is written, I hope. Next, is it written? छोटा सा था, I hope सबने लिख लिया होगा। Yes, give me a response, my dear student. Yes, sir. नहीं तो मैं सो जाऊंगा फिर। Don't make me. Yes, sir. Okay, done. Now, next slide. What does it say? तो अगले स्लाइड में क्या आएगा, रूल नंबर 3 आएगा कि कुछ और आएगा, क्या लग रहा है? What do you think? देखते हैं क्या आता है। ओके, रूल नंबर 3 आ गया। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, do not is removed and not to is used in making indirect speech of imperative sentences. Okay, so example देख लो। The gardener said to the children. गार्डनर जो है, जानते हो आप किसको गार्डनर कहते हैं? Do not या don't pluck the flowers again। तो यहाँ पर do not है जो कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, don't, तो don't को हटा के क्या करना है, not to, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज किए, देखो यहाँ पर अभी आ गया warned, ठीक है, तो ये एक तरह के वार्निंग है ना। तो गार्डनर ने वार्निंग किया, यहाँ पर रिक्वेस्टेड यूज करोगे तो फिर वो सेंस अलग हो जाएगा, इमोशन अलग हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट इज द एग्जैक्ट thing of imperative sentences. The gardener
warned the children not to pluck the flowers. तो do not को किस में बदलना है? not to में. क्या बात है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल सा चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं. और बार बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक उसी तरह से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट होना आपको यही समझना है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, ये तो फिर वही बात हो गई कि मैं बोला भाई ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट है, तो सर व्हाइट का ऑपोजिट क्या होगा वो बताने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए. दैट मच cognitive skill you must have developed, my dear students. Okay, so rule number 3 is written and understood, I hope. फिर से सो गए लगता है मेरे बच्चे. Yes, wake up, wake up. रिटर्न सर. और समझ में भी आ गया? यस सर, अंडरस्टूड. हाँ, एकमात्र हरित ही बस बोल रहा है, बाकी लोग सो रहा है. कृषिका is saying done, मानवी saying done. Done. Okay. अगम, आर्यन, भाविक, दिव्या, इशिका, गार्विक, गौरव, हरित तो वो बता रहा है. काव्या, कुछ कुछ बोलो बेटा. If you don't say anything. Done, sir. Done. 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 Okay. Yes, sir. Okay. So shall I move to the next slide? Yes, sir. यस सर. Okay then, as you wish. So in the next slide, we can see exceptional rules. हालांकि एक ही रूल है, तो एक्सेप्शनल रूल लिख दो. सो अभी तक हमने क्या समझा, क्या जाना कि we have to change the tense of reported speech when we convert it direct to indirect or vice versa. Vice versa means indirect to direct. लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्टेड स्पीच है जिनका टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है. तो ये बहुत अच्छी बात है. और मैं बचपन में जब एग्जाम में ये सब आता था तो मैं देखता था कि इस टाइप के क्वेश्चन आया कि नहीं, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता था. तो इजीएस्ट टास्क इन रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सो वो कौन से मतलब व्हाट आर द कैटेगरीज वेयर वी need not to change the tense. So see, if the direct speech indicates a general truth or universal truth and also a continuing habitual action, the tense form of the direct speech will not be changed even if the reporting verb is in simple past. Reporting verb यहां देखो क्या है, said है ना. तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में रहे या प्रेजेंट में, इट डजंट मैटर. व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ जनरल ट्रूथ. तो जैसे यहां पर बोला गया है, वाइज पीपल सेड नॉलेज इज पावर. तो उस सेंटेंस को वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है. वाइज पीपल सेड दैट नॉलेज इज पावर. ये एक फैक्ट है. ये फैक्ट आज भी रहे है और पहले भी था और आगे भी रहेगा कि नॉलेज इज पावर. यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग नहीं बदलते. और दूसरा किसको नहीं बदलते, यानी हैबिचुअल एक्शन. मोहन्स डैड सेड आई वॉक 10 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एवरी डे. तो एवरी डे वाली बात है, मतलब हैबिचुअल एक्शन है. वो आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों किया करते थे. So Mohan's dad told that he walks 10 kilometer in the morning every day. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो इजी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो परेशान करे. ठीक है, यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग. जो आपने अभी समझा उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है. ठीक है,
अच्छा, अगर मैं आपसे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पूछूं, आई मीन, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स? या आई एम वेटिंग, my ears are eagerly waiting to listen some more universal truths. अरे कोई नहीं है? Sir, any quotes? सन, Like, an apple a day keeps a doctor away. हाँ ये तो प्रोवर्ब हो गया. That is also okay, nice. It can be considered, of course. देखो, मैं जब सन बोला था, अब सोचो सन के ऊपर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट बना सकते हैं. SUN, सन. Sun rises in the morning and sets in the evening. Good, good, very good. Sun rises from the east. ठीक. और यूनिवर्सल फैक्ट क्या हो सकता है? जनरल Sun is the ट्रूथ. nearest star to the earth. हाँ बेटा. Sun is nearest star to the earth. Actually, I'm not getting what are you saying. Can you text me? Okay, Harit is saying sun is shining. Yeah. So he said, Harit का sentence ले लेते हैं. Sun is shining. Sun is shining. Sa sha. So he said, sun is shining. So he told that sun was shiny बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा. Sun is shining और आगे जाके भी रहेगा. ठीक है. So I hope you have noted down all the contents from this slide. Shall I proceed to the next slide? Yes, sir. Okay, only one yes is there. What about others? Yes, sir. तुम लोग का इनिशियल मस्त बन गया. KJ, AV, AP, VJ, VK, DJ, दिव्या जैन, DJ. हरित का बन गया H6. Yes, sir. खुशी जैन का KJ. Good. Okay, so now let us see what is there in next slide. It is a surprise. So फटाफट इस 5 क्वेश्चन को लिखो. You can take your time to solve these questions. ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप हमें भेजिए. व्हाट्सएप से भेज सकते हैं आप ईमेल कर सकते हैं. There are different ways to send your answer, which you feel convenient, you do. So do as directed. You can see there are 5 questions and what you need to do. ब्रैकेट में दिया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है do as directed. The first you need to change into indirect, second again change into indirect, third change into direct, fourth change into indirect. अरे फिफ्थ का वो है इनडायरेक्ट है. ठीक है, ये छूट गया था. So first of all you write the questions and then you solve it. And we are running out of time, so today I'm not going to ask you, but in the next class I will definitely ask you, and it will be much better if you solve it and you send it. So the first question is, do not share any personal information in
सोशल मीडिया, यस, वेरी ट्रू। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। सेड आर कंप्यूटर टीचर, तो हमारे कंप्यूटर के जो शिक्षक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? किसी को नहीं पता कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक यंत्र। संगणक। हाँ हाँ, ठीक। हमारे लास्ट संस्कृत में पढ़े थे। के शिक्षक ने कहा है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को, सोशल को क्या बोलेंगे, सामाजिक मीडिया, अरे यार बड़ा कठिन हो गया हिंदी तो। व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया में शेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये देखो, कभी कभी याद नहीं आता। बांट। प्रचार ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, द कोच सेड टू हिज टीम, क्या कहा उन्होंने? आई विल हैव अपॉइंटेड अ फिजिकल ट्रेनर टू मेक यू ऑल फिट। तो मतलब वो टीम जो है फिट नहीं है, इसका मतलब। और टीम फिट नहीं रहेगा तो खेलेगा कैसे? नेक्स्ट, our sports teacher informed us that we were playing nicely that day. So it is, of course, indirect speech. You need to convert it into indirect. Sorry, you have to convert into direct. ठीक है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। My father said to me, what are you going to prepare with this cardboard? So I'm going to prepare Boeing Boeing A30। वही तो है ना सबसे बड़ा प्लेन। अच्छा, सबसे बड़ा कार्गो प्लेन पता है कितना बड़ा है? बिगेस्ट कार्गो प्लेन सर्च करना नेट पे, बहुत बड़ा है। एंटोनोव AN-225, जाइगेंटिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज गिव मी द मेडिसिन फ्रॉम द ड्रॉर, द पेशेंट सेड। So you have to make it indirect because it is indirect speech. Okay, so I will wait for your answers, and of course you will solve it without any error, without any mistake. अच्छा, कृषिका is saying done, मतलब आप क्वेश्चंस लिख लिए हो है ना? अब आंसर को सॉल्व करो, थोड़ा सा रेस्ट करके। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हड़बड़ी, बिकॉज व्हेन यू डू हड़बड़ी, गड़बड़ी हैपेंस। ओके, ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। वैसे ही कई सारे लोग Good day, sir. भाग गए हैं क्लास से। गुड डे गुड डे, कोई बात नहीं, लेट देम लीव द क्लास। मार्क्स भी एक दिन लीव कर देंगे उनको। ओके, सो सी यू नेक्स्ट and be ready with the answers. And again, please inform me who are going to participate in essay competition. You have time, but you know, don't wait for the last day. जितना पहले भेजोगे उतना अच्छा है। ओके, ओके then, बाय। से बाय। Bye, sir. Thank you. वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. यस बेटा, मोस्ट वेलकम।